हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सो आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी एंजॉयिंग योर टाइम एट while you are in college. Yes. So this is an important session for all of you. I believe that आप सभी लोग MBA मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से में अपना MBA कर रहे हैं और डेफिनेटली लाइक अभी आप अपना फर्स्ट ईयर second semester you may be starting your second semester, or it will be somewhere in between of second semester. जब आप देखते हो कि ये एक फेज ऐसा है कि 1 महीने या 2 महीने बाद आप आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स को लेकर डिस्कशन स्टार्ट करते हो. सो दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम, and in this crucial time, definitely for next 60 minutes, we are going to talk about a lot of things about campus, and I believe that you will get a lot of insights in these 60 minutes. For last 5 years, we have been conducting these sessions, और इन पिछले 5 सालों में हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को प्लेस भी करवाया है, उनकी ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करी है, उनको इंटरव्यूज पे भी गाइड किया है, उनका करियर ग्राफ भी देखा है. And directly indirectly I got in touch with more than 500 students from MBA marketing, and equally from MBA finance also, right? So close to 1000 students I got in touch, और बहुत ही क्लोजली देखा है कि कहाँ कहाँ वो लोग गलतियां करते हैं और कहाँ पर उन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए हैं. So I will be sharing one by one each and everything with all of you. My request to everyone is that please be participative. आप लोग कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन करिए. कहीं कोई क्वेश्चन आता है तो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए, और अगर आपको और साथ में एक नोटबुक भी लेके कैरी करके रखें और नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, राइट? सो the agenda is very clear and simple for today, that we are here for discussion about your campus placements. So before I further begin, basically this is about the institute that we have. It's campus training. CampRep is basically the abbreviated version of campus preparations. We are conducting this training uh, for a lot of professionals. So we started in 2017. So far, we have trained close to 3,000 students for campus placements. That includes both chartered accountants and MBA finance and MBA marketing. Highest package is 24 lakhs, and international, some of our students have got 45 lakhs also. If you talk about MBA students, yes, the highest package was 15.25 lakhs. We have a very large alumni network where the students interact with their seniors also and get a lot of support. The special thing is that we focus on a lot of technical skills. We'll be talking about those questions today. We'll take some questions. You will get the prize also when we'll be covering those questions. And very, very specific company specific preparation. So this is broadly what we do. These are the companies where we have placed our students. It includes all the large companies that participates in Indore. इंदौर में जितनी भी कंपनीज हैं, जो लार्ज कंपनीज हैं, अच्छे पैकेजेस पर जो आती है, उसमें सभी कोई भी कंपनी आप बोलोगे उसमें सम और अदर ऑफ आवर पास्ट स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग, राइट? तो कहीं ना कहीं ये जितने भी नाम आप देख रहे हो, इसके अलावा भी काफी कंपनीज हैं जिसमें उन लोगों का प्लेसमेंट हुआ है. So this is about the institute, and if I'll introduce myself, my name is Gunjan Shrimal, and I'm lead trainer at CampRep. By profession, I am Indore alumni and a chartered accountant. I've worked in a lot of corporates. जिसके आप logos देख रहे हो, ये सभी companies हैं जिसमें मैंने work किया है. So in the first 10 years of my career, I worked for all these companies: Idea Cellular, Apollo Hospitals, Axiata, Tikona Digital, Bank of America. So इन सभी companies का जो एक experience रहा है of conducting interviews, of hiring freshers, so that we have incorporated in our training program. So ये पूरा जो training program है, ये बहुत ही practical angle से जो market की reality है उनके basis पर we have designed. So I spent almost 9 years in Mumbai and Indore, and 2 years I worked in abroad in Malaysia.
So there we have got a lot of insights regarding placement training, and that we have incorporated here. Right. So this is the theme for today's session, that you have to move from the college life to now to corporate life, and this is the best time and this is the right time actually. We are talking about all this. Yes, this is a perfect time. So this is primarily the theme for today's session, and we'll divide it into three parts, right? The first part is understanding the industry and job market. एक बात आप मेरे हिसाब से आप सब लोगों को बड़ी क्लियर है कि जो पिछले 2 साल रहे हैं, उसके सॉरी पिछला जो साल रहा है, और अगर हम कंपेयर करें उसको 2021 और 22 की बैच से, तो पिछला साल प्लेसमेंट के हिसाब से इतना अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप अपने सीनियर से भी बात करेंगे या अपनी प्लेसमेंट सेल में भी बात करेंगे, वो बताएंगे आपको कि 21 वॉज रियली फैंटास्टिक, 22 वॉज इवन फाइन, लेकिन 23 वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट ईयर, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर इस साल की हम बात करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी मिक्स्ड दिस थिंग। आईएम्स की भी अगर आप बात करोगे तो कई आईएम्स में आप देखोगे वहां पर भी 100% प्लेसमेंट नहीं हुए हैं, एक्सेप्ट जो टॉप 5 आईएम्स है। तो सिनेरियो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट स्टिल, लाइक ऐसा नहीं है कि एमबीए मार्केटिंग की का सबसे अच्छा जो एक पार्ट है वो ये है कि सबके प्लेसमेंट हो जाते हैं। तो अगर मैं कई स्टूडेंट से बात करता हूँ ऑन एंड ऑफ, तो वो बताते हैं कि हमको एक मौका मिला है कि हम फाइनेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एचआर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग में जाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मार्केटिंग की कंपनीज आ जाती है और प्लेसमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंफर्ट कहीं ना कहीं आप लोगों को, लेकिन वो कंफर्ट इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि सारी ही कंपनीज एक सिमिलर सिमिलर प्रोफाइल और पैकेज लेके नहीं आती है। आप लोगों को अपना करियर अगर स्टार्ट करना है तो जो टॉप कंपनीज हैं वो ही आपके लिए सही कंपनीज है। अदरवाइज जो एट्रिशन रेट होता है, एट्रिशन रेट बोले या जो वो रेट जो कंपनी ज्वाइन करने के बाद छोड़ने वाला जो रेट होता है, वो रेट भी सबसे ज्यादा मार्केटिंग मैनेजमेंट में ही होता है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा आप कि कंपनीज काफी आएंगी लेकिन क्वालिटी कंपनीज कम है इसमें। ठीक है, तो डेफिनेटली जो फर्स्ट फ्यू कंपनीज है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, राइट, ये जो 4 महीने का पीरियड होता है, इसमें आप देखोगे कि जो बेस्ट कंपनीज हैं वो जनरली आ जाती हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे इस बार भी मैं सुन रहा हूँ कि बर्जर पेंट्स लेट आई है थोड़ी, लेकिन ये कम कंपनीज होती हैं। तो आपका जो मेन टारगेट है वो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, राइट बिफोर दिवाली। योर टारगेट हैज टू बी दैट आई शुड गेट अ जॉब, राइट? और ये प्रोसेस एकदम से फास्ट स्टार्ट हो जाती है, इसलिए दिस इज अ परफेक्ट टाइम कि आप इसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें, राइट? सो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, वी विल टॉक अबाउट सेल्फ क्लैरिटी। काफी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स को कि लाइक हम लोग कुछ सर्टिफिकेशन लें क्या, इंटर्नशिप किस फील्ड में करें, हमारा पर्टिकुलरली 10th में ये परसेंटेज है, 12th में वो ऐसा परसेंटेज है, तो किस तरह का एक वो रहता है। प्लस फिर हम एफएमसीजी में जाएं, बैंकिंग में जाएं, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सेल्फ क्लैरिटी से रिलेटेड है, राइट? तो हम लोग उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे, राइट? और जो लास्ट पार्ट है, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज ऑब्वियसली जो हम लोग रेगुलर डे इन डे आउट करते हैं, दैट इज कैंपस प्रिपरेशन, राइट? तो आई विल बी टेलिंग यू सम पास्ट क्वेश्चंस, और आप लोग को एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि पास्ट में किस तरह के क्वेश्चंस कंपनीज ने पूछे हैं, और आपको कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। देखो, एमबीए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमको कवर करना चाहिए, कौन से हमको उतना ज्यादा फोकस से कवर नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब बातें जो है आज हम लोग आगे वन बाय वन विल टेक, राइट? तो आगे बढ़ने के पहले एक आप लोग अगर मुझे बता दो कि आप लोग कौन से कॉलेज से हैं, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, सो दैट मैं आपको थोड़ा सा कॉलेज के अकॉर्डिंग भी गाइड कर दूंगा। तो आप लोग आईएमएस सर। आईएमएस। ऑलराइट, लिख दोगे अगर और बेटर होगा, अगर चैट बॉक्स में आप लिख दोगे तो। नो सर।
All right, nice. Okay, great. So basically from IMS and Prestige and IPS. Yes, nice. Okay, great. तो अब आप लोग सबसे पहले हम लोग एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि किस टाइप की कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं और उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, राइट, उस सिलेक्शन क्राइटेरिया को एक बार आप लोग अच्छे से समझ लो। ठीक है, मैं आपको एक एक्सेल फाइल बताता हूँ कि और आप लोग उस एक्सेल फाइल को अच्छे से देखिए दैट which all companies have participated, और ये डेटा डेफिनेटली टाइम टू टाइम अपडेट भी होता है, बट फिर भी एक ब्रॉड आइडिया आपको लग जाएगा क्योंकि करीब करीब यही चीजें रिपीट होती है। ठीक है, यही का चीजें रिपीट होती है, यही करीब करीब क्राइटेरियाज रिपीट होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन कि कौन से सेक्टर्स की कंपनीज आ रही हैं सबसे ज्यादा, राइट। मिक्स्ड होता है, हम लोग एकदम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि केवल और केवल एफएमसीजी आएंगी या बैंकिंग आएगी। अगर आप हायर पैकेजेस की बात करते हो तो जो बैंक्स हैं वो जनरली बहुत हाई ऑफर करती है। ठीक है, तो जैसे कि एचडीएफसी बैंक, राइट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, लावा इंटरनेशनल, राइट, जो मोबाइल कंपनी है, कोलगेट, ठीक है, टाटा एआईजी, ओके, बर्जर पेंट्स, ठीक है, एशियन पेंट्स, ये वो कंपनीज हैं जो मैं देखता हूँ कि लगभग लगभग हर साल रिपीट हो रही है। Like Berger Pens, I see almost every year it is participating. Colgate, I see almost it's participating almost every time. And when I'm seeing this, it's a kind of a mix for all the colleges. ऐसा नहीं कि ये किसी एक कॉलेज के बारे में डेटा है, इट्स अ मिक्स, राइट। तो आप ये मत सोचना कि केवल और केवल हमारे लिए, लेकिन ये जरूर है कि ये कहीं ना कहीं इंदौर के कॉलेजेस का एक आप बोल सकते हो, एक एवरेज कंपनीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, राइट। तो साथ में आप पैकेजेस भी देखते जाइए, पैकेजेस कितना ऑफर कर रहे हैं। एशियन पेंट्स फॉर एग्जांपल 7.3, ओके, देन देर आर कंपनीज लाइक ग्रो स्टोर, रैक बैंक, पिन क्लिक, राइट, ये थोड़ी न्यू एज कंपनीज हैं। ठीक है, अलायंट ग्रुप, ओके, वोडाफोन आइडिया, ये तो सुना ही है आपने, टाटा एआईजी, मेक माई ट्रिप, राइट। तो अगर मैं जो डेटा हमारे पास है उसमें 40 कंपनीज की अगर मैं बात करता हूँ, तो 40 में से अगर आप देखते हो कि 6 के ऊपर कितनी कंपनीज हैं, तो करीब करीब 20 कंपनीज, यानी कि 50% कंपनीज आप मान सकते हो कि 6 lakhs के ऊपर है, 20 कंपनीज है। ठीक है, और अगर 7 lakhs के ऊपर की बात करें तो करीब करीब 9 कंपनीज है, राइट। तो मतलब आप ब्रॉडली एक ये लेके चल सकते हो कि 25% कंपनीज ही 7 lakhs के ऊपर ऑफर करेंगे। आपके यहाँ पर अगर आज 40-50 कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग, सो ओनली टॉप 5 or 10 कंपनीज दैट विल बी ऑफरिंग मोर देन 7 lakhs। अच्छा, इसमें एक और बात ये कि जरूरी नहीं है कि इनकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा हो, इनकी जनरली जो वैकेंसी होती है बहुत कम होती है। समटाइम्स दे टेक 2, समटाइम्स दे टेक 3, 4, 5, सिंगल डिजिट में ज्यादा करके इनके रिक्रूटमेंट होते हैं। ठीक है, तो नंबर्स की अगर बात करें तो बहुत कम होते हैं। अगर आप अपने कॉलेज में भी चेक करोगे तो मुश्किल से 50 स्टूडेंट्स माइट हैव गॉट आउट ऑफ 300-400 स्टूडेंट्स मस्ट हैव गॉट मोर देन 7 lakhs। सो आप लोगों का ये पूरा टारगेट होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग में इस तरह की जो बेस्ट कंपनीज आ रही है उन कंपनीज को हमको कैसे भी करके क्रैक करना। अदरवाइज एक बार जब हमारा अगर ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है, जैसे ये जो एक बात करें 3 lakhs, 3.54 और इससे भी कम की कंपनीज आती हैं, तो ओवर द पीरियड ये जो गैप है बड़ा होता चला जाता है। समवन हु हैज जॉइंड फ्रॉम 8 lakhs, राइट, और जिसने 3 lakhs से ज्वाइन किया, ये गैप ओवर द पीरियड बहुत बड़ा हो जाएगा। और नो डाउट अच्छी कंपनीज, अच्छी प्रोफाइल का मतलब केवल पैकेज से ही नहीं है, एक क्वालिटी ऑफ वर्क भी है, राइट। तो मैं ऑल दो पैकेज पे बात कर रहा हूँ अभी, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि जब पैकेज अच्छा होता है तो क्वालिटी ऑफ वर्क भी इम्प्रूव होता है। और आप लोग ये चीज एक पीरियड के बाद रियलाइज करोगे कि क्वालिटी ऑफ वर्क इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आप रोज प्रेशर में नहीं रहना चाहते हो। यस, एक्स्ट्रा प्रेशर कोई भी नहीं ले सकता है, तो सेल्स के लिए ये खास बात है। ठीक है,
तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। दूसरा एक और पार्ट जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, दैट इज एलिजिबिलिटी। यस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अगर ब्रॉडली हम बात करते हैं तो हर कंपनी का अलग अलग दिख रहा है। जैसे कि लाइक HDFC बैंक में बता रहे हैं 50% एकेडमिक्स, नो बैकलॉग्स एंड नो रिलेटिव्स इन HDFC बैंक, राइट। लावा इंटरनेशनल की बात करें 65%, कोलगेट की बात करें 50% थ्रू एकेडमिक्स। यस, बर्जर पेंट्स इसमें ओनली मेल कैंडिडेट्स, राइट। तो ये इस तरह के भी क्राइटेरियाज रहते हैं। और एशियन पेंट्स एज क्राइटेरिया यहाँ पे लेस देन 26। तो मोटा मोटा अगर बात करते हैं इस चीज पे तो इट वेरीज अ लॉट। बट फिर भी अगर एक जनरल बात करें तो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर समवन हैज मोर देन 70%, राइट। अगर 70% से ऊपर है अगर आप लोगों के, तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप सब में ही एलिजिबल हो जाओगे। 65% के ऊपर है तो आप, मुझे लगता है 90% कंपनीज में आप एलिजिबल हो जाओगे। 60% के ऊपर है तो मुझे लगता है 75% कंपनीज में आप एलिजिबल हो जाओगे। और 50% है तो करीब करीब 50 to 60% कंपनीज में आप एलिजिबल होंगे। और 50 से नीचे है अगर आपके नंबर्स, तो डेफिनेटली एक चैलेंज आ जाता है। तो अब ये जो एक पार्ट है इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि ये तो पास्ट है, राइट। 10th 12th बीकॉम, सॉरी जो भी आपने ग्रेजुएशन में आपने करा हो, बीकॉम और बी और BBA व्हाटएवर। सो ये नेचुरली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, कई कंपनीज होती हैं जो गैप ईयर को कंसिडर करती हैं, राइट। गैप ईयर को कई लोग डिफाइन करते हैं, कई लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। गैप ईयर में का मतलब जनरली ये होता है कि आपने बीकॉम या जो भी ग्रेजुएशन डिग्री ली है उसके बाद कोई गैप लिया है, उसके बाद MBA स्टार्ट किया, तो वो अगर कोई गैप रहा है तो वो उसको कंसिडर, मतलब उन कैंडिडेट्स को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। ये अगेन थोड़ा वेरी करती है, सब्जेक्टिव डेफिनेशन है, आपको कॉलेज में चेक कर लेना चाहिए। बट परसेंटेज क्राइटेरिया इज वेरी वेरी क्लियर, यहाँ पे एकदम क्लैरिटी है कि ये परसेंटेजेस, ठीक है। तो आप जिस भी आपका परसेंटेज है उसमें अगर आप फॉलो करते हो तो मेरा एक सजेशन है कि उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। क्योंकि ये क्राइटेरिया फिक्स्ड हैं, इसको अब आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। हम जिन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं वो है बेसिकली जिन कंपनीज में हम बैठेंगे उन कंपनीज के में हमारा परफॉर्मेंस, राइट। सो जनरली स्पीकिंग जो टेस्ट जो राउंड्स होते हैं, राइट, उन राउंड्स के बारे में भी हम लोग एक एक करके डिस्कशन कर लेंगे, राइट। लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी राउंड्स कंपनीज कंडक्ट करती है उसमें ग्रुप डिस्कशन ऑलमोस्ट 90% कंपनीज कंडक्ट करती है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है बिटवीन MBA फाइनेंस एंड MBA मार्केटिंग। MBA फाइनेंस में अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो केवल केवल 50% कंपनीज ही इन ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करती है। लेकिन MBA मार्केटिंग के केस में आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 90% कंपनीज दे कंडक्ट ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। सो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यस प्लीज आस्क। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और व्हाटएवर अभी तक का जो भी हमारा डिस्कशन चल रहा है, अगर कोई आपका डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो और आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी, जैसे जिस जो जो आपका कॉलेज रहेगा, राइट, उस कॉलेज के अकॉर्डिंगली जब हम लोग आगे सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट और अपडेटेड डेटा बताता जाऊंगा कि इस कॉलेज में ये पर्टिकुलर कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं और ये रिपीट भी होती है कंपनीज, ताकि आप उन कंपनीज के लिए कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑलराइट, सो कुछ मिसकंसेप्शन है और वो मिसकंसेप्शंस क्या क्या रहते हैं, राइट, जहाँ पे स्टूडेंट्स गलतियां कर जाते हैं बहुत बार। तो पहला तो ये रहता है कि क्या मुझे कोर मार्केटिंग जॉब मिलेगा, तो वो बात आप अच्छे समझिए कि दिस इज बेसिकली अ सेल्स रोल, राइट। सेल्स और मार्केटिंग दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जब हम लोग आखिरी में क्वेश्चंस लेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या डिफरेंस है बेसिकली सेल्स और मार्केटिंग में।
लेकिन ये बेसिकली जो आप बोलते हो कि आई एम डूइंग एमबीए इन मार्केटिंग, एक्चुअली इट इज प्रैक्टिकली इट इज एन एमबीए इन सेल्स, नॉट एमबीए इन मार्केटिंग, राइट? क्योंकि सारे जॉब जितने भी वो सब सेल्स के आ रहे हैं। आप कितने भी मार्केटिंग की थियरीज पढ़ लो, एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, आपको सेल्स करना है, ठीक है? और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप किसी भी कंपनी की बात करोगे, आई वर्क फॉर आइडिया सेल्यूलर, आइडिया सेल्यूलर में सेल्स का डिपार्टमेंट पूरा अलग है और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट पूरा अलग है। तो जब हम बोलते हैं हम एमबीए मार्केटिंग कर रहे हैं, हमको क्या लगता है कि हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, तो जब ऐसा नहीं है। आप सेल्स का डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे, आप देखोगे पास में जितनी भी कंपनीज आई हैं वो किसके लिए आई है? बिजनेस डेवलपमेंट, रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये सब किसके नाम है? ये सेल्स के नाम, राइट? सेल्स के अलग अलग तरह के नाम। तो ये बात आपको बिल्कुल 100% क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग एमबीए ऑल दो मार्केटिंग में कर रहे हैं, लेकिन काम हमारा क्या है? सेल्स का काम, ठीक है? और दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि एफएमसीजी को लेके एक बड़ा अट्रैक्शन होता है कि हम लोग एफएमसीजी में जाएं, और बैंकिंग को लेके एक वो होता है कि बैंकिंग में तो जनरली फाइनेंस के लोग जाते हैं। लेकिन वो बात भी मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करिएगा कि हमें एफएमसीजी में ही जाना है या बैंकिंग में जाना है या फिर ई कॉमर्स में नहीं जाना है। ऐसा कोई भी एरिया है जिसमें आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करिए। आपको कैसे सिलेक्ट करना है, दैट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। लास्ट में हम उन फैक्टर्स को भी देख लेंगे कौन से फैक्टर्स हैं। लेकिन जो एक थॉट होता है कि लाइक मुझे इस इंडस्ट्री में नहीं जाना है, वो मत रखिए, ठीक है? क्योंकि ये मैंने देखा है कई बार लोग बहुत बेसिक गलतियां कर देते हैं, ऐसा कुछ एक क्राइटेरिया बना के कि उस क्राइटेरिया कोई बेसिस नहीं होता है, बस ये बेसिस होता है कि मुझे ऐसा बताया किसी ने। जैसे मैं कई बार फाइनेंस के स्टूडेंट से डिस्कशन करता हूँ, बोलता हूँ, वो बोलते हैं कि हमको डेलोइट में ज्वाइन नहीं करना है, पहली कंपनी जो आती है कि हम डेलोइट ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि वो टैक्स में आती है, वो टैक्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये गलत थॉट है कि हम लोग गलत अप्रोच है बेसिकली इस तरह से, एकदम से बिना बिना किसी मेजर लॉजिक के हम लोग अगर कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं, ठीक है? थर्ड है कि इंटर्नशिप का कितना इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो इंटर्नशिप का रीजनेबल लेवल का एक इंपॉर्टेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि लाइक किसी ने बहुत बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप करी है तो यस उनका जॉब जल्दी सिक्योर हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंटर्नशिप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट? तो आपका पूरा का पूरा जो एक फोकस है, दैट फोकस हैज टू बी ऑन दी ऑन दी प्रेजेंटेशन ऑफ इंटर्नशिप। ऐसा मत सोचो कि ये हमने कोई एक स्टार्टअप से कर लिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑल्दो मेरा प्रेफरेंस हमेशा ये है कि ब्रांडेड कंपनी से करो। आप एक ऐसा ब्रांड पिक करो जो मार्केट में नोन है, भले जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, बजाज फाइनेंस, आप बोलोगे तो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर आप बोलोगे एक्स वाई जेड कंपनी, कोई नहीं पहचानेगा, ठीक है? तो जो एक नोन ब्रांड है उससे करना चाहिए। इज इट इम्पोर्टेंट टू ऑप्ट फॉर सर्टिफिकेशन कोर्सेज? सर्टिफिकेशन कोर्सेज जनरली जो होता है मार्केटिंग, वो एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होता है। अब अगेन बात तो वही है कि डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स ये दो पैरेलल ट्रैक है, राइट? इनका कहीं कुछ कनेक्शन नहीं है, पूरे अलग अलग है। डिजिटल मार्केटिंग एक अलग फील्ड है और सेल्स एक अलग फील्ड है। जनरली लोग सर्टिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो एक ही उनके दिमाग में आता है कि एक काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट कर लो, उसको कोई फायदा नहीं होगा आपको सेल्स जॉब। अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए जरूर करिए, लेकिन इसलिए कि हम रेज्यूम में उसको लिख देंगे और रिक्रूटर को कोई इंप्रेशन पॉजिटिव पड़ेगा तो उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है? एक क्वेश्चन जो आया कि हाउ एमबीए कोर इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन इन एमबीए, फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड एमबीए। देखो बेसिकली कोर आप अगर आपने अगर अपनी स्ट्रीम फाइनल कर ली है तो अच्छी बात है। कई बार आपके पास एक चॉइस होती है कि हम जब सेकंड ईयर में एंट्री लेते हैं तब आपके पास एक होता है कि हम फाइनेंस लें या मार्केटिंग लें, वो तो एक अलग ही क्वेश्चन है। आज जो हमारा सेशन है वो प्योरली अगर आपने माइंड बना लिया अपना कि मुझे एमबीए मार्केटिंग में जाना है, तो वो सेशन उसके हिसाब से है कि हम लोग एमबीए मार्केटिंग के हिसाब से ही सारी बातें कर रहे हैं। ये एक अलग सवाल है कि यस फाइनेंस में जाना चाहिए या मार्केटिंग में जाना चाहिए, तो वो हम लोग लास्ट में ले लेंगे। वो अगर वैसा कुछ क्वेश्चन है अगर आपका तो ठीक है। You have two experience in telecalling sales.
ओके, और इज इट मैंडेटरी टू डू इंटर्नशिप? देखो, इंटर्नशिप बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। केवल क्योंकि ज्यादा करके लोग फ्रेशर्स होते हैं, उनका इंडस्ट्री में एक्सपोजर कुछ भी नहीं होता है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये एक होता है कि ठीक है, आपने कुछ काम किया है, तो 45 डेज की इसलिए इंटर्नशिप मैटर करती है। अगर आपका ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर इतना ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप कर सको तो अच्छा है। जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको रहेगा उतना कहीं ना कहीं आपके आंसर्स में वो प्रैक्टिकलिटी आएगी। इस सो इंटर्नशिप का एक वही इंपॉर्टेंस है कि हमारी सोच जो है वो थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाती है। शुड वी वेट फॉर राइट प्रोफाइल और सिलेक्ट द कंपनी? ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा करियर रिलेटेड है। ओके ओके ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। सो बेसिकली देखो, आपका जो क्वेश्चन है वो ये कि, और अनम्यूट करके बात कर लो, कोई ऐसी हेजिटेशन वाली बात मत रखो। यस, हम लोग एक इनफॉर्मल डिस्कशन ही कर रहे हैं, राइट? तो इतना उसको यस फॉर्मल सर। मत बनाओ। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि माइनर एमबीए फाइनेंस मेजर है और एमबीए मार्केटिंग माइनर है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो मेजर है बेसिकली वो ही आपको मैटर करने होगा। जो मेजर है उसमें ही आपको बिठाया जाएगा। वो ही जैसे जब कंपनीज आती हैं और बोलती हैं कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मेजर आपका जिसमें स्पेशलाइजेशन है, वहीं की कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करें। ठीक है, ओके। सो ये कुछ क्वेश्चन है, और भी आप, आई एम श्योर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप चाहें तो डेफिनेटली पूछें उसे। तो ये क्वेश्चंस प्रोफाइल को लेकर है, राइट? एक अप्रोच को लेकर है कि हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम थर्ड बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज कैंपस। ऑब्वियसली कैंपस प्रिपरेशंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट इज रेज्यूमे। ठीक है, तो रेज्यूमे ऑब्वियसली आपको कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, अपने अपने कॉलेज के फॉर्मेट के हिसाब से प्रिपेयर करना है आपको। एक जो मेजर मिस्टेक मैं देखता हूँ रेज्यूमे में वो ये होती है कि स्टूडेंट्स कॉलेज का फॉर्मेट तो यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट लिखते हैं वो कंटेंट बहुत गलत लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट? मेरे पास बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूमे आते हैं रिव्यू के लिए। उसमें कई जगह फॉर्मेटिंग एरर, कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक्स, कई जगह और तरह तरह की गलतियां होती है। तो रेज्यूमे डेफिनेटली रिव्यू करवाएं। रिव्यू करवा के ही आप भेजिए। इंटर्नशिप में भी भेज रहे हो तो रेज्यूमे, रेज्यूमे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। फर्स्ट इंप्रेशन आपका यहीं से आता है। अभी भी इंटर्नशिप के लिए अगर आप भेज रहे हो, तो आप चाहो तो डेफिनेटली यू कैन सेंड इट टू अस। ओके, और अपना रिज्यूम रिव्यू करवा लो, साथ में कवर लेटर बनाओ अच्छा सा। तो इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। आपका, आपको जो रिस्पॉन्स आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे रिस्पॉन्स, थोड़ा सा अगर आप इन चीजों के ऊपर बारीकी से ध्यान दे दोगे तो। ठीक है, सो रेज्यूमे के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है, उसमें आपके परसेंटेजेस देख लिए जाते हैं, और वो परसेंटेज और बैकलॉग्स और बाकी भी जो अगर कंपनी का कोई क्राइटेरिया होता है तो उसके बेसिस पे वो लोग आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। कई कंपनीज आजकल वीडियो रेज्यूमे भी मांगती है, बट उसका परसेंटेज कम होता है। वीडियो रेज्यूमे का मतलब ये है कि वो आपको बोलती है कि ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, उनके आपको आंसर्स देने हैं और उसको रिकॉर्ड करके आप भेज दो, राइट? ऑल्दो ये कंपनीज थोड़ी कम होती है। उसके बाद राउंड वन जो होता है, राउंड वन कौन सा है? राउंड वन इज बेसिकली अगेन ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन या रिटर्न टेस्ट जो भी आप उसको बोलते हो। इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। एक होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट इज मोर अबाउट व्हाट यू व्हाट इज योर बिहेवियरल क्वालिटीज। तो इन राउंड्स में अगर बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, और एक होता है बेसिकली साइकोमेट्रिक एंड सम आर अगेन उसको बिहेवियरल टेस्ट बोलते हैं, कुछ लोग अगेन उसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोल देते हैं। एक में एलिमिनेशन होता है, एक में एलिमिनेशन नहीं होता है। जनरली साइकोमेट्रिक टेस्ट में एलिमिनेशन नहीं होता है, वो केवल आपकी पर्सनैलिटी जज कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि आप किसी पार्टी में जाते हो और उस पार्टी में आप अकेले एंजॉय करना ज्यादा पसंद करते हो या आप पूरे ग्रुप के साथ एंजॉय करना पसंद करते हो? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपका रिजेक्शन नहीं होगा। इस क्वेश्चन के बेसिस पे केवल आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट हो जाता है, राइट? कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप थोड़ा इंटरनल ज्यादा रहते हो या आपका एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, राइट?
बट रिजेक्शन नहीं होगा, इसमें बेसिकली एक असेसमेंट हो जाता है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सिचुएशनल टेस्ट, या अगेन देख सम कॉल इट पर्सनालिटी टेस्ट। उसमें रिजेक्शन होते हैं, जैसे वीवो ने एक बार ये टेस्ट कंडक्ट कराया था, तो उसमें बेसिकली क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि एग्जैक्ट एक सिचुएशन देंगे आपको, मैं एक दो एग्जांपल्स दूंगा आपको उसके लिए, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये टेस्ट होते हैं। और ऑब्वियसली एप्टीट्यूड टेस्ट तो लगभग लगभग सारी ही कंपनीज करवाती हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो सीमैट, सीईटी, सीयूईटी, जो भी आपने एग्जाम्स दिए हैं, उसमें जो एक आप देखते हो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कैट की अगर आपने तैयारी करी है, तो एक रीजनेबल लेवल ऑफ टफनेस रहेगी। रीजनेबल लेवल का मतलब ये है कि कैट जितना टफ भी नहीं है, और सीमैट, सीयूईटी जितना आप मान सकते हो कि के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो आप वापस से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक लंबा टाइम हो जाता है, जब हमने 1 साल हो चुका है आप लोगों को, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि स्पीड की बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है इतने टाइम के गैप के बाद। तो दिस इज द राइट टाइम नाउ, अगेन यू शुड स्टार्ट ब्रशिंग अप योर एप्टीट्यूड पार्ट। बहुत सारे लोग एलिमिनेट होते हैं, मतलब मेरा मानना ये है कि करीब करीब बहुत ही ब्रॉड स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो अगर आपके कॉलेज में से 200 लोग बैठ रहे हैं किसी कंपनी में, तो 200 में से 100 लोग रिटर्न में एलिमिनेट हो जाते हैं, और 100 में से करीब करीब 70 से 80 लोग, 70 लोग मान लो जीडी में एलिमिनेट हो जाते हैं, 30 बचते हैं। और उन 30 में से फिर 2 या 3 या 4 या 5 लोग सिलेक्ट होते हैं, जो टॉप कंपनीज की अगर हम बात करते हैं। तो ये लेवल का आप देखोगे कि टफनेस रहने वाली है। इसलिए रिटर्न टेस्ट को बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंस दो, और आज से ही उसके बेसिक्स को अगेन रिवाइज करना आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पार्ट होता है अगेन ग्रुप डिस्कशंस। इसके बारे में तो आपको ज्यादा करके पता है। जीडीज बेसिकली अगेन एलिमिनेशन राउंड होता है अराउंड ग्रुप ऑफ 10 to 12। ये ऑनलाइन भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन भी करवा रही हैं, जिनको आने का टाइम नहीं है या जिनको लग रहा है कि हम लोग इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, वो लोग ऑनलाइन जीडीज करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपने आप को दोनों तरह से प्रिपेयर रखना है, राइट। जीडीज के लिए क्या तैयारी करनी है, अगेन वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन मेनली अभी स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो न्यूज से अपडेट रहना स्टार्ट हो करिए अपने आप को। ग्लोबल न्यूज जो है, रीजनल न्यूज के ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं देना है। जनरली मसाला न्यूज जो आती है वो लोकल न्यूज में ज्यादा आती है, तो मसाला न्यूज छोड़ देना है थोड़े टाइम के लिए। प्योरली फोकस ऑन नेशनल न्यूज एंड इंटरनेशनल न्यूज। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आपके क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स इंप्रूव होते चले जाएंगे, एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप। बट यस, डेफिनेटली जीडी बहुत ही ज्यादा ट्रिकी राउंड है। सबसे ज्यादा जो एफर्ट हमें भी लगते हैं अपनी क्लासेस में वो जीडी में ही लगते हैं, क्योंकि ये इसमें एलिमिनेशन बहुत ज्यादा है। आप देखते हो जनरली 10 में से 2 या 3 लोग सिलेक्ट होते हैं, तो वो जो लेवल बिल्ड करना होता है उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि अगर जीडी आपका क्लियर हो जाता है तो बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इंटरव्यूज में क्लियर करने की। तो मेरा भी आपको सजेशन ये है कि जीडीज पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करिए। रिटर्न आप निकाल लोगे, क्योंकि रिटर्न कहीं ना कहीं आप पहले भी फेस कर चुके हो। जीडीज बहुत अलग तरह का राउंड है, तो उसमें सबसे ज्यादा टाइम, कई बार पूल कैंपस होते हैं, दूसरे कॉलेज के लोग भी आते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए जीडीज पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। जो भी टिप्स मैं आज दे पाऊंगा आपको, डेफिनेटली आज वो करेंगे बात। बाकी आगे भी हमारे सेशंस होंगे, राइट, उसमें भी टू डेफिनेटली पार्टिसिपेट, और आई विल टेल यू लाइक व्हाट यू कैन डू अबाउट ग्रुप डिस्कशंस। आफ्टर दैट द थर्ड इज टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू का मतलब होता है कि हार्डकोर आपका मार्केटिंग रिलेटेड नॉलेज जज करेंगे, राइट, कि आप कैसे सेल करते हो, आपकी अप्रोच क्या है, आपके बिहेवियर क्या है, आप बेसिकली वर्क कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, टेक्निकल नॉलेज आपका कैसा है, सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट राउंड रहता है। उसके बाद एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में बेसिकली आपसे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन दोनों राउंड के कुछ सैंपल क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा, राइट। क्वेश्चन क्या है, इन ग्रुप डिस्कशन देयर इज एनी क्राइटेरिया ऑफ टॉपिक्स और दी विच दे कैन आस्क एनीथिंग। यस, देखो इसमें जीडीज में मान लो कि 60% टॉपिक करंट अफेयर्स पे रहते हैं। मतलब अभी हॉट टॉपिक्स क्या क्या है, राइट। जैसे कि हॉट टॉपिक्स है
जो बिल्कुल नेशनल न्यूज में आप देख रहे हो कि लाइक वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे ये एकदम चल रहा है अभी न्यूज में। सिटीजन अमेंडमेंट शिप एक्ट, राइट, ये एकदम अभी हॉट टॉपिक है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इनको तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल टॉपिक्स, रशिया में इलेक्शंस हुए, यूएस में अभी कुछ टाइम बाद इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये एकदम हॉट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो रेगुलरली आ रहे हैं, 30% टाइम ये क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो इसमें आ जाते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जीडी होता ही है, राइट। इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेकिंग अवे ह्यूमन जॉब्स? Is digital India movement taking pace or not? Is India ready to come under top 3 economies or not? तो ये जो टॉपिक्स हैं ये एक तरह से इटरनल टॉपिक्स है, हमेशा ही ये टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ एजुकेशन, इंडियाज फोकस हैज टू बी ऑन एजुकेशन और ऑन डिफेंस। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं रिपीट होते हैं, ठीक है। तो 30% टाइम ये पूछे जाते हैं और 10% एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक का कुछ भी बेस नहीं होता है। जैसे कि लाइक ब्लू वर्सेस रेड, ग्रीन वर्सेस येलो, इस तरह के जो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये बहुत कम पूछे जाते हैं, 10% ऑफ द टाइम। मैक्सिमम टाइम इट इज डिफाइंड टॉपिक्स, यस। और लास्ट, अगर बड़ी कंपनीज की बात करें तो करीब करीब 3 राउंड्स होते हैं वहां पर। एक टेक्निकल राउंड, एक एचआर राउंड और एक लास्ट राउंड जो होता है वो सीनियर पर्सन के साथ होता है, जो थोड़ा सा प्रेसिडेंट लेवल पे या वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे होते हैं, उनके साथ हो राउंड, ठीक है। तो तीनों की थोड़ी अलग अलग अप्रोच है और कुछ सैंपल क्वेश्चंस लेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जहां तक क्वेश्चंस का सवाल है, ऑल्दो मेरा सजेशन अगेन आप लोगों को यही है कि स्टार्ट करिए, ठीक है, बिल्डअप करना। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और क्लास के बाद मतलब ये वाले सेशन के बाद आप अटेम्प्ट करिएगा इन क्वेश्चंस को कि आर यू एबल टू आंसर इट, और ठीक है। अगर आप आंसर कर पा रहे हो अच्छी बात है, मतलब एक लेवल ऑफ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको टाइम लग रहा है इसके अंदर तो अगेन यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सेम गोज फॉर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, इसका भी आप स्नैपशॉट ले लो। इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स जनरली वही टॉपिक्स हैं जो हम लोग देखते हैं। यही सब मैथमेटिक्स में एनालिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, ब्लड रिलेशनशिप, नॉन वर्बल रीजनिंग, डायरेक्शन, सीक्वेंसिंग, नंबर सीरीज, एनालॉजी टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, राइट। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑल्दो आपके पास इसके लिए मटेरियल होगा, बट हम लोग इसमें बहुत सारे सैंपल पेपर हमारे पास भी अवेलेबल रहते हैं। विल स्टार्ट सेंडिंग दोस क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर टू यू, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक जो लोग नए लोग हैं और जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, यस, मेरा सजेशन ये है कि ग्रुप भी ज्वाइन कर लो आप, जो मार्केटिंग के लिए स्पेसिफिकली हमने बनाया है। और उस ग्रुप में हम लोग इस तरह के जो अपडेट्स हैं, राइट, उन अपडेट्स को हम लोग रेगुलर बेसिस पे भेजते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग ज्वाइन हो गए उसके अंदर। अगर कोई नहीं है तो आई सेंड यू द लिंक, ठीक है। सो सिंपल सी बात ये है कि कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, राइट। इन चीजों को आप एक पार्ट बनाओ अपनी रेगुलर रूटीन का, ठीक है। और कोशिश करें कि इनको डेली बेसिस पे करना सॉल्व, ठीक है। और इंटर्नशिप के भी जो इंटरव्यूज होते हैं, जैसे कई बार आईटीसी आ जाती है, कई बार अमूल आती है इंटर्नशिप के लिए, तो वहां पर भी ये पूरी प्रोसेस होती है। वहां पर भी आपका रिटर्न टेस्ट होगा, वहां पर भी आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। तो ये चीजें ऐसा नहीं कि हम केवल अगस्त के हिसाब से सोचे कि अगस्त में ये सब चीजें करनी हो सकता है। ये अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल आने वाला है, मई में भी ये चीजें हो सकती है, ठीक है। और बहुत सारी एक्टिविटीज कॉलेज में चलती रहती है, लाइक पहले इंटर्नशिप होती है, फिर एग्जाम्स आ जाते हैं, फिर इंटरनल्स आ जाते हैं। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स इन्हीं चीजों में कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, आप लोग स्मार्टली वर्क करो। और स्मार्टनेस इस चीज में है कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि इस सब चीजों के अलावा फर्स्ट प्रायोरिटी हैज टू बी ऑन कैंपस, कैंपस प्लेसमेंट।
जिन लोगों ने लास्ट ईयर, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगस्त सितंबर में जॉब लेके फ्री हो गए थे, पूरा साल उन्होंने एंजॉय किया, बेस्ट कंपनीज में सिलेक्ट हो गए। ये जो 3-4 महीने हैं, इनमें बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कर ली, एक एक दो दो घंटा एक्स्ट्रा देना स्टार्ट कर दिया, और पहले 2-3 कंपनीज जो आई उसमें सिलेक्ट हो गए, साल पूरे साल फ्री रहे। और जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ 6 महीने से, वो लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। कहीं ट्राई करते हैं, प्लेसमेंट सेल में बात करते हैं, ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं, बढ़ती जाती है परेशानी। और मैं आपको बोलूंगा ये बात कि एक वो स्टूडेंट्स है जो आपके सीनियर हैं, जो प्लेस हो चुके हैं, और एक वो जो प्लेस नहीं हो, दोनों से जरूर बात करो, दोनों का पर्सपेक्टिव लो आपकी, क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है। सो इसी तरह से मैथ्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में भी ये जो क्वेश्चंस जनरली रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, एवरेजेस, ग्राफ, पाई चार्ट, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, तो इसके मिक्स क्वेश्चंस जो रहेंगे ये आपके इसमें रहने वाले हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा टेस्ट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक बोला था कि टेस्ट, ये जो पांचों क्राइटेरिया, पांचों राउंड्स होने वाले हैं, अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में एक एक करके एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके मैंने आपको भी एग्जांपल बता दिए। दूसरा होता है सिचुएशनल टेस्ट। ठीक है, सिचुएशनल टेस्ट जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, व्हेन अपोलोजाइजिंग टू अ कस्टमर व्हाट शुड द रिप्रेजेंटेटिव अवॉइड। राइट, ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? यस, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन? When apologizing to a customer, what should the representative avoid? All right, nice. So got good answers. Gaurav, Ashutosh, Ayush. Okay. Soumya, yes. Good answers. Yes. So basically, Arpit, B is the right answer. Yes. When apologizing to customer, you should avoid selling additional products. तो कहने का मतलब क्या है, ये जो राउंड होता है इसके अंदर एलिमिनेशन होता है। अगर इसका आंसर गलत हुआ तो ऐसे क्वेश्चंस को वो लोग काउंट करके फिर एलिमिनेशन भी कर देते हैं। ठीक है। और इसके अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, जिसमें वो बेस्ट आंसर पूछ सकते हैं, वर्स्ट आंसर पूछ सकते हैं। राइट, तो इसके कुछ इसका ये भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में देखिएगा इस क्वेश्चन को। सो इस तरह के सिचुएशनल टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें डिजायर्ड ट्रेड्स जो हम बात करें तो ऐसा एकदम डिफाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली ब्रॉडली बात करें कि आपका अप्रोच, बिजनेस अप्रोच कैसा है आपका। ठीक है, इमोशनल मैनेजमेंट कैसा है, तो इसको क्योंकि बिहेवियरल क्वालिटीज एकदम डिफाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें फिर भी आप एक तरह की प्रिपरेशन कर सकते हो सिचुएशन टेस्ट। हमारा जो प्लान है, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड क्विकली आई विल टेल यू हमारा प्लान क्या रहने वाला है। 21 डेज का जो प्लान रहेगा उसमें विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिगार्डिंग इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन, सिलेक्शन टेस्ट एंड करियर रिलेटेड क्वेरीज। राइट, ये सारे ही एस्पेक्ट्स कवर होते हैं along with placement assistance. Right, we have a very large alumni network of close to 3,000 students. Right, तो उस alumni network को हम लोग प्लेसमेंट असिस्टेंस में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को सपोर्ट देने में यूज करते हैं। दिस इज अ कंप्लीट डिटेल ऑफ द 21 डेज प्लानर। इसमें ब्रॉडली सारे ही एस्पेक्ट्स को डिटेल में लिखा हुआ है, और ये डिटेलिंग आपको अगेन ग्रुप पर मिल जाएगी इफ यू आर नॉट एबल टू रीड इट नाउ। राइट, इट विल कवर all these aspects, whatever we have mentioned here. ठीक है, बाकी जिनके भी और क्वेश्चंस हो क्लासेस से रिलेटेड, मोस्टली हम लोग क्लासेस का अभी जो थॉट है दैट इज अप्रैल फर्स्ट वीक से हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और दो क्लासेस आ रहे हैं टू विजयनगर। यस, तो बाकी डिटेल्स जैसे जैसे हम लोग की और चीजें फॉर्मुलाइज होती जाएंगी, आई विल स्टार्ट शेयरिंग विद ऑल ऑफ। इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कि इंटर्नशिप किस तरह की कंपनी में करनी चाहिए, तो उसका अभी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आंसर दे सकता हूँ कि गो फॉर ब्रांड्स, बिग ब्रांड्स, जो नोन ब्रांड्स है। ठीक है, अगर आप भले ही उसमें प्रोफाइल आपको बहुत वीक प्रोफाइल मिल रही है, मतलब प्रोफाइल के नाम पे आपको बोला जा रहा है कि आप केवल
डेटा यहाँ से उधर कॉपी करना है, इतना भी सिंपल काम हो तो भी ब्रांड के ऊपर जाओ। क्योंकि देखो ये बात वैसी है कि जो नाम है बेसिकली, नाम जो है वो बिकता है। ठीक है, 45 डेज की लर्निंग को लेके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि हम कुछ बहुत नया सीख लेंगे, कुछ ज्यादा सीखने में नहीं आता है। सिंपल सी बात ये है कि हम लोग एक बेसिक इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज में केवल एक क्राइटेरिया रखो कि क्या नाम बड़ा है क्या। मुंबई से अगर कोई इंटरव्यू पैनल आता है, हम उसको बोलते हैं कि हमने इस कंपनी से इंटर्नशिप करी है, क्या वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं? राइट, बस इतना एक मोटा मोटा सा क्राइटेरिया रखिए। और बाकी फिर मेरी एक्सेसिबिलिटी हमेशा रहेगी आप लोगों को। आप लोग डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट फॉर सच काइंड ऑफ क्वेरीज। जब भी अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पर अटक रहे हैं या फिर हमको कोई क्वेरी आ रही है कर रहे हैं, फील फ्री टू कॉल कॉन्टेक्ट अस, विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट। ठीक है। क्वेश्चंस क्या है? यू विल टेक 1-to-1 इंटरव्यू फॉर प्रैक्टिस। यस डेफिनेटली, हम लोग 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज करते हैं कंडक्ट इसमें, और मल्टीपल राउंड्स होते हैं मॉक इंटरव्यू के। Uh, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इज इट नेसेसरी दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीपीओ वी शुड अप्लाई फॉर कॉलेज इंटर्नशिप और शुड? देखो, पीपीओ के लिए डेफिनेटली यस, अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी कंपनी है, फॉर एग्जांपल आईटीसी, आईटीसी इज अ वेरी गुड कंपनी, अगर आपको आईटीसी में पीपीओ का ऑप्शन मिल रहा है तो कंसीडर करिए उसको, बहुत सीरियसली कंसीडर करिए। अच्छी कंपनी, अच्छा ब्रांड है। और मैं अगर मार्केट की रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि मैं प्लेसमेंट से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग काफी कंपनीज को सपोर्ट करते हैं इससे रिलेटेड। तो अच्छी कंपनीज केवल अच्छी कंपनीज के कैंडिडेट्स को ही ले जाती है। इस बात को ऐसे समझो कि आपने एचयूएल ज्वाइन कर ली फॉर एग्जांपल, तो एचयूएल आपने ज्वाइन करी, काम बहुत बेसिक कर रहे हो वहां पर, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। लेकिन आईटीसी जब हायरिंग करेगी तो वो उन्हीं कैंडिडेट्स को लेंगे जो एचयूएल में काम कर रहे हैं। वो ये नहीं देखती कि इन्होंने काम क्या करा है, वो ब्रांड देखते हैं। तो पहला जो साल होता है करियर का, पहला साल एक ही बात बस दिमाग में होनी चाहिए कि नाम काम से बड़ा नाम है। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर हम लोग ऐसा पुटअप करें तो काम से बड़ा नाम है। आज हमको ब्रांड चाहिए हमारे रेज्यूमे में, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इंटर्नशिप और पहला जॉब दोनों में कोशिश ये करो कि बड़ा ब्रांड आए आपके पास। और बड़ा ब्रांड आ गया तो फिर धीरे धीरे करके काम तो आ ही जाएगा। ठीक है, मेरा करियर ग्राफ का एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। मेरा पहला जॉब था आइडिया सेल्युलर के साथ, एक बहुत बड़ा ब्रांड आ गया मेरे पास। उसके पहले मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी बैंक ऑफ अमेरिका से। दोनों जगह मैंने बहुत ही एवरेज वर्किंग करी थी, ऐसा नहीं था बहुत फिनोमिनल मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी कंपनी में आपको एक बहुत छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन ये जो ब्रांड्स थे मेरे पास, इस कारण मेरे पास बहुत सारी कंपनीज के कॉल्स आते रहते थे। और मेरा मन होता था कि मैं बड़ी कंपनी में एयरटेल जा सकता था मैं चाहता तो वोडाफोन ज्वाइन कर सकता था। लेकिन उस टाइम पे फिर मेरा माइंड में ये हुआ कि मुझे एक स्टार्टअप को ज्वाइन करना है, तो मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन करी। लेकिन मैंने बाद में ज्वाइन करी, पहला जॉब नहीं लिया स्टार्टअप। उसके बाद मैंने फिर स्टार्टअप से फिर एक बड़ी कंपनी में जॉब किया। वो मैं इसलिए कर पाया क्योंकि पहले मैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का टैग ले चुका था। ठीक है, इसलिए अभी ये बात ध्यान रखिएगा कि करियर की शुरुआत में बड़े ब्रांड्स के ऊपर फोकस करना है आपको, बड़े ब्रांड्स ज्वाइन करने चाहिए। राइट, सो अब हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन हमारा, आई अंडरस्टैंड कि एकदम फ्लो में नहीं चल पा रहा है। कुछ करियर रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ कैंपस। लेकिन ये थोड़ा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें हम लोग थोड़ा मिक्स एंड मैच चलता रहेगा। ठीक है तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो करियर से रिलेटेड, राइट, पहले वो क्वेश्चंस आप लोग पूछें इंटर्नशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। और जो अब हमारा लास्ट फेज है, राइट, लास्ट 15 मिनट्स जो हम स्पेंड करने वाले हैं, वो स्पेंड करेंगे इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर। और इन इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आपको आंसर करने की कोशिश करनी है। और जो भी स्टूडेंट इसको अच्छे से आंसर करेंगे, राइट, दे विल गेट द प्राइज फॉर द सेम। जिनके भी आंसर प्रॉपर रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे, दे विल गेट द प्राइज, राइट।
सो पहले हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं जो अभी तक का डिस्कशन हुआ है रिलेटेड टू करियर एंड रिलेटेड टू सेल्फ क्लैरिटी। सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो एफएमसीजी और बीएफएसआई में से मतलब सेक्टर चूज करने में दिक्कत आ रही है। हाँ वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं एक आपको ये वाली स्लाइड बताता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दी थी, दिस वन। यस, सो बेसिकली देखो, जब ये इसका भी एक पिक्चर ले लो आप। वेरियस कंसिडरेशंस, जब भी आप सिलेक्ट करो कोई एक कंपनी को, तो क्या आपको सोचना है बेसिकली, तो इसका एक पिक्चर ले लीजिए। और इसमें देखो क्या क्या बातें लिखी है। इसमें लिखा है इंडस्ट्री, बी टू बी, बी टू सी, डी टू सी, लोकेशन, पैकेज, ग्रोथ और सेल्स प्रेशर। ठीक है, तो इसको है ना रिवर्स ऑर्डर में एक बार देखना स्टार्ट कर दो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेल्स प्रेशर। ऐसी कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है कि अपना जो दिन रात की नींद है वो ही खराब हो जाए। राइट, नींद ही नहीं आ रही है, शाम को खाना खा रहे हैं उस टाइम पे भी फोन आ रहा है, सेल्स का प्रेशर हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तो पहला कंसिडरेशन यही है। अब एफएमसीजी और बीएफएसआई दोनों में सेल्स का प्रेशर किस में ज्यादा है, तो ये एकदम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है। अभी आप इंश्योरेंस अगर सेल करने जा रहे हो, तो इंश्योरेंस इज अ डिफिकल्ट प्रोडक्ट। इंश्योरेंस बेचना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम किसी इंसान से पैसा ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं उसको। तो इंश्योरेंस बेचना मुश्किल है। लेकिन अगर आप किसी को लोन दोगे, तो लोन बेचना इजी है, क्योंकि लोन में आप पैसा दे रहे हो उसको। तो आपको ये चीज पहले से ही सोच के जानी है कि ये बिकने वाला प्रोडक्ट है या नहीं है। अगर ये नहीं बिक रहा है मार्केट में, या डिफिकल्ट प्रोडक्ट है, और इसीलिए स्टार्टअप कई बार ज्यादा पैसे दे देते हैं, सिटी से अच्छा मिल जाता है, लेकिन सेल्स प्रेशर बहुत होता है। बायजूस, आपको पता ही है बायजूस की अभी हालत बड़ी खराब चल रही है। 2020 से मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो 2019 से ही ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। 2020 से जब मैं देख रहा हूँ उसको, तो बहुत हाई पैकेज, 9 lakhs 10 lakhs ऐसे लेकर उन्होंने स्टूडेंट्स को हायर किया था अन अकेडमी। यस, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स की जब मुझे फीडबैक मिला, तो आई वाज रियली सरप्राइज, क्योंकि प्रेशर था उसके ऊपर काफी। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि ईज ऑफ सेलिंग दी प्रोडक्ट। और इसलिए एफएमसीजी में क्या फायदा होता है, एक थोड़ा सा कि प्रोडक्ट अपने आप बिक रहे हैं। राइट, आज आप ब्रिटानिया के बिस्किट्स की बात करो, या आप लक्स की बात करो, सोप की बात करो, सब अपने आप बिक रहे हैं। इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपको बेसिकली एक सप्लाई चेन को बस मेंटेन रखना है, थोड़ी बेसिक लेवल ऑफ रिलेशनशिप मेंटेन रखना है। तो इसमें ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स, दैट हैज टू बी योर फर्स्ट क्राइटेरिया। तो एफएमसीजी को भी मैं जनरलाइज नहीं कर सकता हूँ, और ना बीएफएसआई को जनरलाइज कर सकता हूँ, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि जब आप एफएमसीजी में अंदर डिटेल में जाओगे, तो जैसे कि लाइक अमूल आ रही है, आईटीसी आ रही है, ये सब इनके फास्ट सेलिंग हो रही है, तो ऐसी कंपनीज को प्रेफरेंस दो। कोई नई कंपनी है, जो नई कंपनी एफएमसीजी में एंटर हुई है, वो बेचना मुश्किल है। और बीएफएसआई में इंश्योरेंस बेचना मुश्किल है, लेकिन लोन बेचना easy। तो इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इट विल डिपेंड ऑन काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड हाउ ओल्ड दैट कंपनी इज। ठीक है, सो ये तो क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन मेरे ख्याल से, एफएमसीजी वर्सेस बीएफएसआई। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है आपको, बी टू बी एंड बी टू सी। बिजनेस टू बिजनेस जो होता है वो कंपेरेटिवली इजी होता है, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड सेल्स होती है उसके अंदर। और बी टू सी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। राइट, लेकिन इसको भी जनरलाइज मत करिएगा, अगेन डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, सेक्टर टू सेक्टर। बट फिर भी ये कंसिडरेशन रखना चाहिए आपको ब्रॉडली। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, वो है लोकेशन। अभी 2-3 साल तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप रिमोट एरियाज में भी चले गए तो। लेकिन लाइफ के 3-4 साल के बाद कहीं ना कहीं एक ये रियलाइजेशन होता है कि लोकेशन मैटर करती है लाइफ में। बहुत ही छोटी लोकेशन में हम हैं, बहुत ही किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर जनरल फैसिलिटीज नहीं है, तो एक फीलिंग आती है कि हमको थोड़ा सा मेट्रो, सेमी मेट्रो, टियर 2 टियर 3 टाउन मिल जाए तो बेटर रहेगा। तो ये भी एक ध्यान रखना है आपको कि ऐसा हर कंपनी ज्वाइन करने के बाद, कि अगले 3-4 साल में मुझे मेरी डिजायर्ड लोकेशन मिलेगी या नहीं। ठीक है, तो ये 2-3 क्राइटेरिया रखिए, और बाकी फिर आप मुझे केस टू केस बेसिस पे कॉल कर सकते हो और बता सकते हो कि ये कंपनी का हमारे पास ऑप्शन है, तो आई विल टेल यू ऑन डिटेल अबाउट दैट। ठीक है।
ऑल राइट, और क्वेश्चन बताइए, एनी क्वेश्चन यू हैव? सर कॉलेज में एक मिथ चलता है कि इंटर्नशिप 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो मतलब एक इंटर्नशिप भी सफिशिएंट होती है ना? यस, एक इंटर्नशिप सफिशिएंट है। ज्यादा कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ठीक है, मतलब इट्स फाइन। एक दो इंटर्नशिप भी है तो भी फाइन है। इट्स ऑल अबाउट कि इंटरव्यू में आप अगर आपके पास एक इंटर्नशिप भी है तो उसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो। क्वांटिटी के बेसिस पे कोई सिलेक्ट नहीं करता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो क्वांटिटीज बढ़ाते हैं, इंटर्नशिप ज्यादा करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, सर्टिफिकेशन ज्यादा करते हैं, वो सब करने के बाद लास्ट में जब वो रेज्यूमे लेकर आते हैं, मैं उनसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ और वो बोलते हैं कि नहीं सर, इसमें तो हमको ज्यादा नॉलेज ही नहीं है, तो हम इसको निकाल देते हैं। तो जब आपको निकालना ही था तो फिर करिए क्यों इंटर्नशिप? घबराना है अगर सर्टिफिकेशन भी इतने सारे ले लिए सर्टिफिकेट, और फिर उसमें क्रॉस क्वेश्चन में फिर सोचते हैं कि हमको पता नहीं इसके बारे में। तो इसलिए सभी लोगों को मैं यही बोलूंगा कि मार्केटिंग के केस में सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छी इंटर्नशिप करिए, उस इंटर्नशिप में मैं एक फॉर्मेट शेयर कर दूंगा आपको, उतने क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए उस इंटर्नशिप से बारे में, जैसे कि वो उसमें प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट का उस प्रोडक्ट का नॉलेज पूरा, उस कंपनी का नॉलेज, अगर किसी को सेल करेंगे तो क्या रहेगा, ऐसे करके कुछ 8-10 क्वेश्चन हैं, वो पता होने चाहिए। अगर वो आपने कर लिए, दैट इज फाइन। तो एक इंटर्नशिप पर टारगेट करिए और एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी को कोशिश करिए कि वो मिल जाए, ठीक है। Trying to do internship in Vivo retail outlet, so it will be good for me, or else I should sit in college. Vivo एक अच्छा ब्रांड है, ठीक है, मतलब कर सकते हो। इससे बेटर अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बट इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, ठीक है, सो क्वेश्चंस में ये इसका भी आप स्नैपशॉट ले लो। ये जनरली मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, एटीएल, बीटीएल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बी टू बी, बी टू सी, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, और एक ही क्वेश्चन आज करेंगे, एक या दो ज्यादा से ज्यादा। सेल्स पिच, यस, ये मेरे हिसाब से दी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कोई आपको जो वो नहीं मिलेगा जहाँ पे उन्होंने सेल्स पिच नहीं पूछा हो, हर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आपने सुना होगा कि प्लीज सेल दिस बॉटल टू मी। यस, ये आपने सुना होगा, बार बार सुनो, ठीक है। तो आपको आप में से किसी एक को जो भी अप्रोच करना चाहते हैं, यू हैव टू सेल दिस बॉटल टू मी, राइट। इतनी देर से मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो आप थोड़ा बहुत तो मुझे जान गए हो। तो यू नीड टू सेल दिस बॉटल टू मी। यस, क्या आपकी 3-4 लाइंस रहेंगी इसके अंदर जब आप इसका सेल्स पिच बनाओगे? एनीवन हु वुड लाइक टू गिव द आंसर? यस, एनीवन प्लीज ट्राई। यस सर, मैं ट्राई करूँ एक बार। हाँ, बोलिए। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Very good afternoon sir, my name is Ghanshyam, calling from Bisleri brand. Actually we are selling the bottle of Bisleri. तो सर मैं सबसे पहले आपको इस बोतल की क्वालिटी बताना चाहूँगा कि ये जो बिस्लरी बोतल है ये आपको पता होगा कि बहुत साल पुरानी बोतल है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट 100 years मिनिमम होने वाले हैं सर। और अगर मैं बात करूं तो आप इसका पानी पियेंगे तो आपको ये एडवांटेज रहेगा, जैसे कि आप नॉर्मल पानी पीते हैं तो उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइक आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और कॉस्ट भी इसकी बहुत अच्छी है। और आप अगर ये बॉटल लेते हैं तो अभी कंपनी ने ऑफर चलाया है सर कि जो भी ये स्टार्टिंग की 20 बॉटल में से कुछ भी अगर आप लेते हैं स्टार्टिंग की टॉप 20 बॉटल में से, तो हो सकता है कि आप एक लकी कस्टमर भी बन। तो ये हमारे जो ऑफर है आपके लिए, और इसका कॉस्ट ओनली 20 रुपीज रहेगा 1 लीटर की बॉटल। ऑल राइट, ओके, गुड गुड ट्राई, अच्छा, वेल डन।
So I have a question that आपने बोला कि cost effective bottle है, right? 20 rupees. So 20 rupees is very high for 1 liter bottle, right? तो ये तो बहुत ही महंगी बॉटल है उस हिसाब से, कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कॉस्ट जो है, लेकिन आप भी जानते हैं सर कि आज की डेट में जो अगर कॉस्ट ज्यादा होती है तो क्वालिटी भी अच्छी होती है, राइट। तो क्वालिटी इस बॉटल की बहुत अच्छी रहेगी, और राइट, बॉटल नॉट इसके अंदर जो वाटर है वो बहुत अच्छी क्वालिटी रहेगी। इससे जैसे कि मैंने आपसे बताया कि सर कोई भी डिसीजेस नहीं होंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और आज की डेट में आपको पता है कि अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, तो आप भी चाहेंगे कि एक स्वस्थ और अच्छा पानी पिए। तो अगर क्वालिटी अगर आप चाहते हैं तो कॉस्ट थोड़ा सा सर आप भी समझ सकते हैं सर। all right, nice, nice. Okay, good job, Ghanshyam, well done. Sir, I would like to try. हाँ, आप भी ट्राई करें। Yes, I will take yes one more answer. हाँ, बोलिए। Sir, as you are speaking from approximately 2 hours, I'm assuming that you are very thirsty at this point. So, would you like to have some mineral water, which is of best quality and around in market for around 100 years? So, would you like to have water, sir? Yes, definitely. Sir, basically the sales pitch is a game of demand and supply from my side. So if we create a demand, so we are able to sell our product. So first of all, we have to make a situation for the customer so that he could be influenced by our selling before making our any sales pitch. Nice, nice, nice. Very good answer. Okay, well done. I think both of the G's, right, Ghanshyam and Gaurav, well done. Yes, definitely, you will get the prize from our side. Okay. Uh, what do you uh, uh, what you have to do is both of you just send this your UPI number, right, on our office number, as I have mentioned our office number here, right? You will get the prize on that. You just drop a message on this WhatsApp number, right? So basically, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, प्लीज सेल दिस बॉटल टू। और ये आपको हर कंपनी में कहीं ना किसी तरह से पूछा जाएगा। कोई बोलता है पेन सेल कर दो, कोई बोलता है बॉटल सेल कर दो, कोई बोलता है मोबाइल सेल कर दो। तो ये चीज रहती है सबसे कॉमन। ठीक है, आप लोग एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से एक पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, राइट? द पर्सपेक्टिव इज बेसिकली two three things here, right? The first perspective is that अपने आप को आप लोग इंट्रोड्यूस करिए। ठीक है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन डेफिनेटली बहुत मैटर करता है। तो गुड मॉर्निंग सर, आई एम रिप्रेजेंटिंग बिस्लरी सेल्स टीम एंड बिस्लरी इज वन ऑफ द रिनोन्ड ब्रांड्स एंड मार्केट लीडर इन पैकेज वाटर बॉटल फ्रॉम पास्ट 50 इयर्स। जो आंसर घनश्याम ने दिया था, राइट, कि हम लोग एक बिस्लरी से हैं और 100 इयर्स पुरानी कंपनी है। तो एक इंट्रोडक्शन दे दिया आपने। उसके बाद आपने बोला आई अंडरस्टैंड दैट यू आर अ सीनियर प्रोफेशनल वर्किंग फॉर लार्ज एमएनसी। ये 90% लोग ये बात मिस कर जाते हैं। वो सीधे प्रोडक्ट के ऊपर उसकी क्वालिटी बताना स्टार्ट करते हैं। तो जो गौरव ने करा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक ट्रेनर हो, ठीक है, और उस ट्रेनर की नीड समझो आप। तो ही टोल्ड मी दैट यू आर अ ट्रेनर एंड यू डू a lot of traveling, you speak a lot and you have to have something to keep you hydrated। आपको अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए यू नीड समथिंग। तो जो आप, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और वो बोल रहे हैं कि प्लीज सेल दिस पेन टू मी, तो सीधे उस पेन की क्वालिटी मत बताइए। आप पहले ये बताओ कि सर आई अंडरस्टैंड दैट यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन हु हैज टू अटेंड लॉट ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, हु हैज टू साइन लॉट ऑफ चेक्स। तो उनकी नीड के हिसाब से फिर आप उस पेन की क्वालिटी, अगर आप किसी स्टूडेंट को सेल कर रहे हो तो उस स्टूडेंट की जो नीड है वो उसके हिसाब से सेल करो। मैं देखता हूँ 99% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो देखते ही नहीं कौन है उनका कस्टमर, सीधे वो क्वालिटी बताना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? सो ये एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसी हिसाब से ये एक सैंपल सेल्स पिच है, इसका भी आप एक पिक्चर ले लो, राइट? एंड दिस इज हाउ वन हैज टू talk about each and every aspect. So sales pitch is not only about this one, it is basically about target audience, problem or opportunity, solution, value proposition, some facts and call to action, right? तो उसका ये एक एग्जांपल है, राइट? और मेरा मानना ये है कि अगर आप बहुत ही अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन करोगे, राइट, इस पूरे फॉर्मेट में,
तो आपका जो पहला इंप्रेशन है वो एकदम परफेक्ट इंप्रेशन पड़ेगा विच दे आर लुकिंग फॉर। और जो हम देखते हैं कि 10 में से 3 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, 4 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो ये प्रिपरेशन पहले से ही करके जाते हैं, रैंडम आंसर नहीं देते, ठीक है। मार्केटिंग का सबसे अच्छी बात अगर बोले मार्केटिंग के इंटरव्यूज में, तो सबसे अच्छी बात ये है कि अ, मुश्किल से 50-60 टेक्निकल क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। फाइनेंस की बात करें तो हजारों क्वेश्चन है। मार्केटिंग में एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि एक ही क्वेश्चन के 10 आंसर। अगर मैं आज आप हर एक से पूछता हूँ कि प्लीज सेल दिस बॉटल टू मी, हर एक का अलग आंसर, और 90% लोगों के आंसर सही भी होंगे, तो ये जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ पे बहुत मैटर करता है, हाउ वी आर टॉकिंग, राइट, व्हाट थिंग्स वी आर सेइंग, ये सब चीजें इसके अंदर इंडिविजुअली बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो आपको आपके आंसर्स को बहुत रिफाइंड बनाना है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर करने की कोशिश करना है आपसे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सेल्स वर्सेस मार्केटिंग, पोजीशनिंग, राइट। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए हैं यहाँ पर, B2B सेल्स, B2C सेल्स, ठीक है। एक इसी में एक और क्वेश्चन और लेते हैं, D2C सेल्स। D2C सेल्स क्या होता है? डायरेक्ट टू कस्टमर। डायरेक्ट टू कस्टमर, उसका मतलब क्या होता है? सीधे कस्टमर की नीड्स, मतलब सीधे कस्टमर से डील करना। नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट सीधे उसका कस्टमर। एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल। सर थर्ड पार्टी के थ्रू, सर जैसे जैसे कोई अमूल, कंपनी है। वन बाय वन, लेट सर जैसे अमूल है वो डायरेक्ट मतलब कस्टमर्स को बेचना, वो प्रोडक्ट, मिल्क का प्रोडक्ट या कुछ भी, आइसक्रीम जो सर भी है उनकी। one second, let him complete first. So Ayush, you tell me, like, Amul is a B2C brand or D2C brand? सर D2C। सर इट इज B, बोथ, मतलब वो दोनों में डील कर सकता है। जैसे उसका जो दूध है उससे वो पनीर करके सब्स्टिट्यूट करके कर सकता है, तो उस हिसाब से वो बन सकता है। और वैसे D2C ब्रांड है सर, कस्टमर से डील कर। डायरेक्ट टू कस्टमर है वो, B2C हाँ नहीं है। सर। हाँ सर। ऑलराइट, ओके, चलिए तो यही क्वेश्चन लेते हैं हम। Who would like to answer this? Amul is a B2C brand or D2C brand? सर आई थिंक इट्स अ B2C ब्रांड। B2C brand, D2C नहीं है, क्यों नहीं है D2C? सर बिकॉज सर वो डायरेक्ट सेल नहीं करता है सर, वो अपने इंटरमीडिएट मतलब रिटेल स्टोर पे ही देता है। और जैसे कि सर D2C में ई कॉमर्स आ जाएगा, जैसे अमेजोन है जिसको अपन सर डायरेक्ट ई कॉमर्स से ऑर्डर करके अपने घर पे बुला सकते हैं। हाँ, वेरी गुड आंसर। बेसिकली D2C इज मोस्टली कनेक्टेड विद, जैसे कि अगर आज आप सैमसंग का फोन खरीदना है आपको, तो जनरली हम क्या करते हैं, अमेजोन की साइट पे जाते हैं, फिर सैमसंग का फोन खरीदते हैं। लेकिन अगर आप सैमसंग की साइट पे जाके डायरेक्ट सैमसंग से खरीद रहे हो, राइट, तो वो हो गया डायरेक्ट टू कस्टमर। मतलब उसमें उसने अमेजन का सहारा नहीं लिया है कि अमेजन के थ्रू हम सेल करेंगे, उसने डायरेक्टली सैमसंग ने ही हमको सेल कर दिया, तो ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर है। तो यस वो सर, ही उसमें डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी है और बिजनेस टू कंज्यूमर भी है। जैसे उसमें इंटरमीडिएट्स नहीं होती हैं सर। इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व नहीं होती है डायरेक्ट टू कंज्यूमर में, ठीक है। तो वो B2C और D2C दोनों रहेगा। अमूल के केस में भी अगर अमूल डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहा है, तो वो B2C ब्रांड के उसमें आता है। D2C इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो वैसे भी किसी इंटरमीडियरी के थ्रू सेल नहीं कर रहा था, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो डायरेक्टली कर रहा था, ठीक है। बट एनीवेज, गुड ट्राई बोथ ऑफ यू, आयुष एंड आशुतोष, राइट। सो अभी आप लोगों के जो आंसर्स हैं डेफिनेटली वो थोड़े थियोरेटिकल रहेंगे, क्योंकि अभी आप बुक्स और उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो। धीरे धीरे करके अपने आंसर्स में प्रैक्टिकलिटीज, कंपनीज के एग्जांपल्स और लेकर आइए, ताकि आपके आंसर्स में एक प्रैक्टिकल फ्लेवर आए। और आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन रहती है इंटरव्यूअर की कि आप जो भी बात करोगे वो रियलिस्टिक बातें हैं, राइट, एप्लीकेशन बेस्ड आंसर है, ना कि प्योरली बुकिश नॉलेज है। आपको अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, राइट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, तो जनरली स्टूडेंट उसकी डेफिनेशन पूरी अच्छे से बता देते हैं, लेकिन एक स्टेप आगे जाके उसका एक एग्जाम्पल दो आप, राइट, कि ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इस तरह से आप आपके आंसर्स में क्वालिटी बिल्ड कर सकते हो, और प्रैक्टिकलिटीज लाइए, ज्यादा से ज्यादा चीजें देखें, पढ़ें, रियल लाइफ से ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो आपके आंसर्स बहुत मैच्योर्ड आंसर्स साउंड करेंगे।
Right. We have got 4-5 answers. Good job. Right. This is about टेक्निकल इंटरव्यूज. इसी तरह से एचआर इंटरव्यूज होते हैं, उसके बारे में ज्यादा बात करने वाली ऐसा जो बात नहीं है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको एमबीए के टाइम पे भी फेस करा है. व्हाई हैव यू डन एमबीए, व्हाट स्पेशलाइजेशंस यू आर गोइंग फॉर, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म प्लान्स. बस इसमें ये है कि अब आपका एंगल डिफरेंट हो जाएगा. इसमें आप जॉब में जा रहे हो तो थोड़े से आंसर्स के एंगल्स जॉब ओरिएंटेड ज्यादा हो जाएंगे. व्हाई वी शुड हायर यू, इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है. ठीक है. सो ये एक और एंगल हो जाता है. ये एक और क्वेश्चन बार बार आजकल पूछा जा रहा है. बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, हाउ विल यू मैनेज टू वर्क आउटसाइड योर होम टाउन. राइट. कई लोगों का ये होता है कि हमारे पेरेंट्स हम पे डिपेंडेंट रहेंगे आने वाले टाइम में, तो आप बाहर जॉब करोगे तो आप अपने पेरेंट्स को आप कैसे मैनेज करोगे आप जब अपने घर से बाहर हो. तो ये जो कुछ किसी किसी के बिजनेसेस होते हैं, तो आप बिजनेस में क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे हो और जॉब क्यों करना चाह रहे हो. ठीक है. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, क्यों एफएमसीजी कंपनी ले रहे हो, बैंकिंग कंपनी नहीं ले रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस एचआर में आते हैं. कई लोग इसको बहुत हल्के उसमें लेते हैं कि ठीक है आंसर कर देंगे जो आएगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए. कई लोगों का ट्रैक कैसा रहता है कि लाइक हमने इंजीनियरिंग करी है, इंजीनियरिंग से फिर हम लोग उसमें चले गए हैं, और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग से हम मार्केटिंग में आ गए. तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इंजीनियरिंग करी आपने फिर मार्केटिंग में आ गए, तो क्या रीजन है. इस तरह के जो क्वेश्चंस है, राइट, इन ये सब एचआर के पार्ट होते हैं. ठीक है. राइट. सेल्फ क्लैरिटी से रिलेटेड इसको शॉर्ट में मैं एक बार और ब्रीफ आउट कर देता हूँ. सेल्फ क्लैरिटी बेसिकली ये है कि पहला फोकस हैज टू बी ऑन कैंपस प्रिपरेशन. आप कॉलेज इसलिए कर रहे हो क्योंकि, और आज आप ये सेशन भी शायद इसलिए अटेंड कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका फोकस जॉब पर है कि एक बेस्ट जॉब आपको मिल जाए स्टार्टिंग में. तो पहला फोकस कैंपस प्रिपरेशन पे करिए, दूसरा फोकस अच्छी इंटर्नशिप पे करिए, तीसरा फोकस लाइव प्रोजेक्ट्स पे करिए, चौथा फोकस इंटर्नशिप फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स के इंस्टीट्यूट भी इंटर्नशिप कराते हैं उस पर, और फिफ्थ सर्टिफिकेशन. इसी सीक्वेंस में अपना फोकस रखिए. कई बार मैं देखता हूँ कि कोई लोग सर्टिफिकेशन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं. कई लोग कॉलेज की एक्टिविटीज में अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं. कई बार हम लोग एग्जाम्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं. सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई भी चीज आपकी कैंपस की तैयारी को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए. मतलब मेरा तो ये मानना है कि जब आपकी पहली बेस्ट कंपनी है, आपको उसमें सिलेक्शन हो जाना चाहिए. जब बाकी लोग अभी उस थॉट में आए ही नहीं है कि कैंपस क्या होता है, कब होता है. बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ 2-2 3-3 कंपनीज को तो ट्रायल बेसिस पे ही देखते रहते हैं. अच्छी कंपनीज निकाल देते हैं बस ट्रायल बेसिस पे कि रिजेक्ट हो गए. और उसमें कुछ लोग होते हैं जो पहले से पता होता है उनको कि अगस्त में कंपनी आ रही है, जुलाई में कंपनी आने वाली है, मेंटली पूरी तरह प्रिपेयर्ड है. जैसे ही कंपनी आई सारे राउंड्स क्लियर कर. तो वो थॉट बेस्ट थॉट है. ठीक है. तो इस अप्रोच से आपको आगे बढ़ना चाहिए. सर्टिफिकेट्स के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मत लीजिएगा बहुत सारे सर्टिफिकेट. ज्यादा से ज्यादा कोई एक आध सर्टिफिकेट करना हो तो कर लो, वो भी आपके ऊपर है. यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मैटर करता है. आप जितनी प्रैक्टिकल बातें करोगे इंटरव्यू में, राइट, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगी रादर देन टॉकिंग थ्योरेटिकल, है ना. राइट. सो दिस इज ऑल ब्रॉडली फ्रॉम माय साइड. इस सब बातें करने को तो बहुत सारी है, राइट. बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन ब्रॉडली दिस इज द बिगिनिंग. और ये बहुत अच्छा टाइम है एक्चुअली व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग इन द मार्च. देयर डेफिनेटली गुड टाइम अवेलेबल. अप्रैल अवेलेबल है, मई अवेलेबल है, फिर आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी. तो इट्स अ वेरी गुड टाइम जब आप इन सब चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो. राइट. तो शॉर्ट में अगर इसको पूरा देखें तो सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए. जीडीज के लिए न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़ना स्टार्ट करें. रेज्यूमे बनाइए अपना इंटर्नशिप के हिसाब से और फाइनल प्लेसमेंट के हिसाब से. उनको पूरा इन एंड आउट अच्छे से वेरीफाई करवा लीजिए. इंटर्नशिप्स और लाइव प्रोजेक्ट्स को खैर वो बात की बात है, जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तब की ये बात है. केस स्टडीज प्रिपेयर करिए कुछ. जैसे हमने अभी सेल्स पिच की बात करी, पोजीशनिंग की बात करी, 4 Ps ऑफ मार्केटिंग की बात करी, तो इन सब के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लीजिए, रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए. और
अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करिए दैट व्हाट एग्जैक्टली विच कंपनी यू वुड लाइक टू गो फॉर। बहुत सारे आपके सीनियर्स हैं जो अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हैं, उनसे बात करिए। जो हमारे सर्कल में, हमारे एल्यूमनाई नेटवर्क में जो प्लेस्ड हैं, विल ब्रिंग दोज पीपल इनटू आवर इंस्टीट्यूट। उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करवाएंगे ताकि आपको एक पूरी क्लैरिटी मिल जाए किन चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एट दिस up till this point. Yes, अब आप लोगों के अगर और कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज बताइए मुझे। सर आगे भी क्लासेस होंगी क्या हमारी? हम लोगों की क्लासेस रन होती हैं फॉर कैंपस प्रिपरेशंस, और वो क्लासेस हम लोग अभी नेक्स्ट मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाकी जो क्लासेस के डिटेल्स और सब हैं वो डिटेल्स आप चाहो तो वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, और अभी ग्रुप आपने ऑब्वियसली ग्रुप में आप एडेड हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसमें भी उसकी रिलेटेड डिटेल्स आते रहेंगे। राइट, ऑल राइट, और बताएं। यस, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग रिलेटेड टू eligibility criteria or career or anything that you have? All right. So आज जो हमारे विनर्स हैं, बेसिकली विनर्स आर घनश्याम, गौरव, आयुष एंड आशुतोष। राइट, 4 लोगों ने अपने आंसर्स दिए। ठीक है, just drop a message on our office number I have mentioned in the chat box, right? And just drop a WhatsApp message to them to the office. They'll send the prizes to you. Yeah. So thank you very much once again for your active participation and your patience listening. Right. I again wish you all the best for your upcoming exams, internships, and the projects that you are handling this moment. So thank you very much once again, and I'll see you in our upcoming sessions. Bye bye. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you.